اور اب آپ کے سوالات کریں گے شامل۔ یوگنڈا سے فرید ناصر۔ انڈونیشیا میں آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی رجیم چینج ہو رہی ہے یا کوئی معاملات دوسرے ہیں جو بظاہر پس پردہ ہیں اور عام دنیا کے سامنے نہیں آ رہے؟ اس کا تو بس مختصر سے سوال دوں گا، بیکاز پھر نہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر انڈونیشیا کی انٹرنل سیاست ڈسکس کرنی پڑے گی۔ لب لباب یہ ہے جی کہ ایک صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ رہے ہیں 10 سال کے لیے، ایک ان کے صاحبزادے ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر تھے۔ وہ اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی کے اندر، اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہی ہے اس میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایز پریزیڈنٹ، اور مکا کر لیا ود دا سٹنگ پریزیڈنٹ، جو 10 سال کے بعد اب پھر سے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا بیٹا دے دیا اس کو ایز اے رننگ میٹ۔ تو اب جو ایکس اپوزیشن لیڈر اور پریزیڈنٹ صاحب کا بیٹا وہ پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی جو ہے نا اس کو لیڈ کریں گے، اور وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں فار الیکشن۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ سکارنو کی جو صاحبزادی ہیں، سکارنو پتری، وہ پریشان ہے کیونکہ ریگنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ پاکستانیوں کو تو پتہ ہے جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کس طریقے سے سیاست رخ موڑتی ہے۔ اس لیے انڈونیشیا میں ابھی بڑی انسٹیبلٹی ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ کو جوائن کر گئے ہیں اور اب اگلی الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں شور پڑ گیا کہ الیکشن ریگنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور تو یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی سازش نہیں ہے۔ اس ڈرٹی پالیٹکس آل اوور اگین، پالیٹکس آف اپورچونزم اینڈ سو آن۔ وہ اب جو صاحب پریزیڈنٹ ہے وہ 10 سال سے زیادہ رہ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنا بیٹا کو فٹ کر دیا اس کے اندر۔ تو آنے والے پروگرامز میں اس پہ تفصیل سے بات کرتے رہیں گے جیسے سچویشن آگے جاتی ہے انڈونیشیا میں۔ خالد اویس صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کہ آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہے پنجاب کے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جو بحث نئے صوبوں کے بارے میں چھڑی ہوئی ہے، نئے صوبے بننے سے کیا ہماری تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا، یا جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں خاص طور پہ جبکہ مقامی حکومتیں جو کہ فنکشنل نہیں ہیں اور ہماری کمزور معیشت، کیا یہ بوجھ برداشت کرے گی، اور کیا یہ گورنرز کے فیلورز تو نہیں ہوں گے اس سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پروونسز کو سمجھانے کے لیے، 4 پروونسز کو، کہ آپ بیہیو کریں۔ NFC ایوارڈ اس کو ریوائز کرنا ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی۔ اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو توڑ دیں گے اور نئی پروونسز بنا لیں گے، پھر ان کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا بیکاز وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ میڈیا کے اندر ایک پریشر ٹیکٹک ہے۔ کوئی 12 صوبے کوئی نہیں بننے، یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی نئی کنٹروورسی کو آگے لے جانے کا۔ یہ اسی حد تک تھی۔ بہت مسائل ہیں نئے صوبے بننے میں، اور یہ ادھر نہیں جائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ جو ہے اس کو ریوائز کر لیا جائے، اور یہ جو 4 صوبے ہیں یہ مان جائے اس بات کو۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہے۔ ابھی ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا گیا، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو۔ ایکس گورنر ہیں عشرت حسین صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک، ایڈوائزر بھی رہے ہیں، بہت تجربہ کار شخص ہیں، اور انہوں نے بہت سی اسٹڈی کی، انہوں نے ایک مضمون بھی بڑا اچھا سا لکھا ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کمپلیکیشنز بھی بہت ہیں۔ اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اس وقت سندھ والے جو تنگ کر رہے ہیں یا KP والے جو تنگ کر رہے ہیں ان کو ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وایا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ فیلر چھوڑا گیا ہے نبض ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کچھ سمجھا۔ اب اگلا سوال ہے سعودی عرب سے ساجد ملک صاحب کا۔ سیٹ صاحب، یہ جو پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور انڈیا نے ایک دم پانی چھوڑ دیا ہے، تو انڈیا کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، انڈیا میں، تو جب پانی اکٹھا ہوگا تو یہ تو آگے جب ڈیم ٹوٹ سکتا ہے یا ایک دم پانی چھوڑے گا تو آگے تباہی ہوگی۔ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ تو سر اگر پاکستان یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے یا اقوام متحدہ میں کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ آبی جارحیت کی ہے۔ تو دوسرا سر میرا یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ٹولے بنے ہوئے ہیں۔ ایک ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بننے چاہیے، دوسرا ٹولہ کہتا ہے جی نہیں بننے چاہیے، تیسرا ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بنائیں گے ٹوٹ جائے گا تو ہم پانی میں بہ جائیں گے، چوتھا ٹولہ بولتا ہے جی نہریں بننی چاہیے، پانچواں ٹولہ بولتا ہے جی ہمارا پانی چلا جائے گا۔ یہ سر ان سب کو کون اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھا کے کوئی ایک عملی جامہ پہنائے جس میں عوام پس رہی ہے؟ کبھی ہمارے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو ہمارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو سر یہ کوئی باہر سے ایکسپرٹ کیوں نہیں بلاتے؟ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ بلائیں جو ان کو مشورہ دیں کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ اپنی تو انہوں نے بات ایک دوسرے کی ماننی ہے۔ سر یہ کون کرے گا پاکستان میں؟ آپ کے 2 سوال ہیں، پہلا انڈیا والا، دوسرا پاکستان والا۔
इंडिया, देखिए ये इंडिया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है इसको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि पानी आ रहा है पीछे से, बारिशें भी हो रही हैं और पीछे से पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। अब उनके डैम्स जो हैं जब वो भर जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है। और ये 3 दरिया उनके हैं और ये इंडस वाटर ट्रीटीज में लिखा है, उनका हक है, जब वो छोड़ देंगे। अब इसलिए हमारे लिए जो इश्यू बनता है वो ये बनता है कि यार हमें पहले बता तो दो, टाइम पे बता दो, ताकि हम कोई अपना तैयारी कर लें। इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया आपको, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटीज है उसके जरिए नहीं बताया कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट रूट लिया है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए, जिसके साथ डिले भी होगी और पूरा डेटा भी नहीं मिला। तो आई थिंक इस हद तक तो है, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा तंग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये एक पूरी साजिश थी? अभी वो सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। वो इस दफा उनको पता चल गया है कि कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो धमकी भी दे सकते हैं। उनका एक जर्नैल है जो कि ऐसी बातें भी कर रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से कि इस टाइम पे छोड़ दें और इस टाइम पे ना छोड़े, वगैरह वगैरह। मगर मेरा नहीं ख्याल इस दफा उन्होंने वो किया है। और इस दफा तो यही हुआ है कि हमें देर से पता चला, और उसके बाद हमारा तो वही प्रॉब्लम है कि हर साल हमें पता ये होता है, कोई नई बात नहीं। और हमने किसी हुकूमत ने आज तक कोई इक़दाम नहीं किए कि फ्लडिंग को रोका जाए या कोई इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। अच्छा, उसका भी एक ही सिर्फ रीज़न है, मैं आपको बता दूं, कोई गवर्नमेंट नहीं ये चाहती कि वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जब हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारे। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वायर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, भी उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं कौन बिठाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है, एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब और डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए और ये बेहतर टाइम है कि टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर मगर इसमें मौजूद है, लेकिन वही सेठी साहब वाली बात, अगर अभी वक्त आपके पास मौजूद है तो माजी में जो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका मुद्दत का या मोहलत का, वो फ़ायदा अब उठाया जाना चाहिए। और वेलकम बैक टू द शो। और अब सवाल है शहजाद सलीम साहब का मलेशिया से। इसराइल का जो एक फ़लस्तीन के हवाले से जो रोल है वो तो सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह मुस्लिम दुनिया पूरी खामोश है, लेकिन इसराइल के और भी कुछ ऐसे न्यूज़ हैं कि वो इथियोपिया में ब्रिज बना रहे हैं, 2 इसराइली बैंक्स हैं उसमें, वो फाइनेंस कर रहे हैं और इथियोपिया में, और उसको जो है वो इजिप्ट को डिच करने के लिए बेसिकली प्लान किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरा, इसराइल की इंडिया के एक इलाका है कसुल में, वहाँ भी मौजूदगी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वहाँ मौजूद होना और
पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो इसराइली ड्रोन यूज हुए हैं और टेक्नोलॉजी का तबादला भी हुआ होगा, तो एशिया में चाइना किस तरह देख रहा है इसराइल के रोल को? क्योंकि अब पाकिस्तान और चाइना एक है, तो फिर चाइना पे भी इम्पैक्ट आएगा इसराइल की यहाँ मौजूदगी। अगर इंडिया, आप कह रहे हैं कि ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन क्या इसराइल की वहाँ मौजूदगी में, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया को पता है हमें कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और कितना वो एक्सपर्ट है उसमें, तो आप ये दो जगहों पे, जो एक तो इजिप्ट को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है इथियोपिया के थ्रू, दूसरा इंडिया में मौजूदगी इसराइल की, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? चाइना किस तरह इसको देख रहा है, किस तरह कंटेन करेगा? क्योंकि अगर इसराइल से डायरेक्ट कुछ होता है तो वो तो फिर अमेरिका उसमें शामिल हो जाएगा जंग में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, बात यह है कि इसराइल और इथियोपिया, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 किस्म के इश्यूज हैं। इसराइल का एक तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है इथियोपिया के साथ। इथियोपिया के अंदर यहूदी है, दो किस्म के यहूदी हैं। एक यहूदी क्लैन है जिन्हें कहा जाता है बेटा इसराइल, और दूसरा है फलाश मूरा। ये दो कम्युनिटीज हैं ज्यूज की हिस्टोरिकली। वहाँ कहत थी और डिस्क्रिमिनेशन थी, तो इसलिए एक 1984 में और एक 1991 में इसराइल ने एयरलिफ्ट किए थे, ज्यूज को वहां से उठा के इसराइल ले गए थे। अच्छा, इसराइल की ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि जहां भी जो यहूदी हो, जिस मुल्क में भी हो, जहां भी हो, वो इसराइल का सिटीजन है, उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है। तो एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इसराइल का एक इंटरेस्ट रहा है इथियोपिया के अंदर। अच्छा, इसी के साथ साथ भी वो डेवलपमेंट जो वहाँ हो रही है, जो वो करते हैं, तो उसका भी यही ताल्लुक है। तो इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी हो जाता है। अच्छा, मगर इससे अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्योरिटी और मिलिट्री का भी एक इसमें इशू है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और वहाँ इसराइल अपना चाहता है कि उसका वहाँ कदम वहाँ जमा के वहाँ बैठे। इसलिए रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से भी इसराइल का वहाँ एक सिक्योरिटी एंगल भी है। और फिर फाइनली इथियोपिया की जो सारी इसराइली जो टेक्नोलॉजी है और ड्रोन्स और ये वो सब वहाँ बेच रहा है और ट्रांसफर कर रहा है, और वो ऑब्वियसली मार्केट भी है उसके हथियारों की, जिसका लिंक अब बन जाता है। यहाँ से हट के हम चलते हैं टू इंडिया। इंडिया को भी बहुत मैसिव एड है इसराइल की ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। Israel is the second largest supplier of military technology to India, especially advanced intelligence gathering and AI technology. तो वो ये जो जगह है ना कश्मीर के अंदर, जहाँ वो इजरायली टूरिस्ट्स आके बैठे हुए हैं, ये बेसिकली दे आर नॉट टूरिस्ट्स, ये इजराइल की कंटिजेंट है। दे आर देयर फॉर टू हेल्प इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क सब बनाया हुआ है, टू लिस्निंग पोस्ट बनाई हुई है, एंड ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए दिस इज इंडिया इजराइल कोऑपरेशन, एंड बहुत सीरियस किस्म की कोऑपरेशन है। बाकी अब चाइना इसको कैसे देखेगा, चाइना को पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और ये है, मगर व्हाट कैन दे डू अबाउट इट? दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए एक किस्म का उन्होंने अनऑफिशियल बेस दे दिया है कश्मीर में इजराइलीज को।